Good morning, everyone. My name is Dr. Neeta Rai. I am from Pune, and today I present a demo on parental preparation. So, in parental preparation, we study different type of products, what they need, and what have different pre-formulation study, sterilization, formulation, and packaging, as well as the evaluation of parameter. So what we have to cover, that it is first cover the introduction part, then second that it is cover route of administration, then after general requirement, after that what kind of the pre-formulation study we have done about the parental product. So pre-formulation study, after the formulation, before starting the formulation we have done the pre-formulation study. Then in parental product we use different isotonic substances, so we have to maintain the isotonicity as well as the adjustment. So after pre-formulation we study the regarding the adjustment of isotonic fluid. Then after that in parental product the main part that we have to mention or we have to remember that it is the sterilization part, because sterility is most important part in the parental product, because they directly enter into our blood circulation. After that different type of formulation of parental product we have to formulate. There is many kind, that solution, suspension, emulsion. So we study about formulation. Then after formulation that we prepare the products. After that we have to package. So after that we study packaging of product. Then after final we have to evaluate the parental product. So evaluation of parental product. Okay, so we have to cover all the parameters, all the points in the parental product. First we study about the introduction part of the parental product, that what is the parental product, what does it mean, what does it show. So first we cover the introduction part. Okay, so parental derived from Greek word, that means para and intron. Para means parental break into the two parts, that it covered by that Greek in Greek word we determine in two words, that means para means beside and intestine means intron. Intron means beside the intestine. Intron means intestine. Beside the intestine means the parental product means parental means beside the intestine, means the product which is given into the body, that it is beside the intestine. Okay, it means the parental administration that include the administration of any other route other than the intestine. मीन्स हम जो भी पेरेंटल प्रोडक्ट है हम इनको जो हमारी बॉडी में एंटर करेंगे वो हर एक रूट से दे सकते हैं, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, बट नॉट बाय द इंटेस्टाइन. ओके, नाउ इट कंसिस्ट एज ए स्टेरिलाइज्ड प्रोडक्ट, मीन्स द प्रोडक्ट शुड बी ए sterile. There are different kind of parental product, that means solution, emulsion, suspension. We made different formulations of parental product, that is in the form of only solution, not in the form of dosage form, means oral drug, not it is. That is parenteral means it is given by in the form of liquid, that means solution, emulsion and suspension. Solution, next step.
suspension and emulsion form. Then definition of parenteral products. Mainly there are different type of definitions are given in different books, but we prefer that parenterals are sterile preparation that intended for administration under or through one or more layer of skin or mucous membrane. That means parenteral are sterile preparations which is administered by different routes, or in the skin there are 7 layers of the skin, so we have to give a different skin, but skin or mucous membrane, but it is not given orally. Okay, because parenteral preparation are given by it is solution form, and it is generally given by the intestinal, beyond the intestinal, or it is given under the one or more layer of skin or mucous membrane. Okay, then there are different advantage and disadvantage of parenteral preparation. First, there are some advantages. We talk about some advantages of parenteral. The parenteral are administration of unconscious patient. Means हम जो भी अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं, है ना, उनको हम पेरेंटल प्रोडक्ट को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं. बट इफ अगर हमको ओरली प्रोडक्ट देना हो तो वो अनकॉन्शियस, अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस स्टेट में है, सो हम उसको वो ड्रग नहीं दे सकते, तो हम उनके पेरेंटल फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं ताकि जो अनकॉन्शियस पेशेंट है उनको हम इजीली एडमिनिस्ट्रेट कर सकें. ठीक है, जो पेशेंट्स दैट हु कैन नॉट टेक ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, सो वी कैन इजीली एडमिनिस्ट्रेट parenteral preparation of unconscious patient. Second, this is free from pyrogen, means when we administer into your body there are no any other pyrogens are present, so they are free from pyrogen. Then it has low toxicity as compared to solid dosage form, means in solid dosage form there are chances of toxicity, creating the toxicity, but in parenteral product, because of sterilization there have very less chance of toxicity in product. So it give also, जब हम बात करते हैं बायोअबिलिटी की, it give 100% बायोअबिलिटी and means it have no chance of missing dose. So if we given to a patient, जैसे हम किसी पेशेंट्स को डोज देना है तो वो हम उसको बिना मिसिंग करे हम वो डोज को इजीली दे सकते हैं, जो कि अनकॉन्शियस पेशेंट है. बट जो कॉन्शियस पेशेंट है हम उनको ओरली ड्रग दे देते हैं, प्रोवाइड करा देते हैं ताकि वो ले सके, लेकिन वो क्या करते हैं अपना डोज मिस भी कर सकते हैं. बट जो पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं देयर इज लेस चांस ऑफ मिसिंग डोज, और इट गिव 100% बायोअबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट. नाउ देन नेक्स्ट इज वी टॉक अबाउट डिसएडवांटेजेस. Now we talk about the disadvantages of parenteral product. Then parenteral products are generally require aseptic technique in production of compounding, handling of product. Means हमको जब parenteral product बनाने पड़ते हैं तो उनके लिए हमको एक ऐसा environment चाहिए है जहाँ पर हमको aseptic condition maintain करनी हो, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारा बहुत ही ज़्यादा एक्सपोजर में नहीं आना चाहिए. ये हमारा एक मेन क्राइटेरिया होता है. ठीक है, देन सेकेंड चीज इज रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रेन पर्सनल फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. मीन्स हमें जो हमारा जो पर्सन है, हम जिसको ड्रग दे रहे हैं, ठीक है, जो हमें पेरेंटल प्रोवाइड करा रहा है, मीन्स जो हमको इंजेक्शंस लगा रहा है ना, तो उसको हमारा मेन क्या रहता है, जब वो इंजेक्शन इंजेक्ट करेगा तो उसको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है. मेन हमको जब उसकी ट्रेनिंग देना पड़ेगा तो वो हमारे लिए थोड़ा सा कॉस्टली इफेक्ट होता है, क्योंकि ये एक ट्रेनिंग पर्सन के थ्रू ही हमको ये देना पड़ता है. देन रियल और साइकोलॉजिकल पेन एसोसिएटेड विद द पेन ऑफ इंजेक्शन. मीन्स जब हम हमारा क्या करते हैं, इंजेक्शन को लगाते हैं तो हमको एक साइट ऑफ एक जहाँ पे इंजेक्शन प्रोवाइड किया है वहाँ पे एक पेन भी होता है, ये एक डिसएडवांटेज है. लेकिन हम जब ओरली ड्रग्स लेते हैं तब ऐसा कुछ नहीं होता है.
ताकि हम ओरली लेते हैं और उसको स्वेल कर जाते हैं। बट इनमें क्या होता है, जब हम अप्लाई कर रहे हैं, व्हेन वी अप्लाई इनटू आवर बॉडी, देन इट हैव पेन विद द साइट ऑफ इंजेक्शन। देन हाईली रिस्क इफ एनी मिस्टेक इज हैपेंड, मींस क्या होता है, जब ये जो ड्रग है अगर हम ज्यादा कंसंट्रेशन में ले लेते हैं तो एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं कि कोई भी टॉक्सिसिटी हो जाती है या ट्रॉमा या कुछ भी हो सकता है। तो हाईली रिस्क इफ मिस्टेक इज हैपन, देन मेन थिंग इज इट इज वेरी कॉस्टली, मींस अकॉर्डिंग टू ओरल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पेरेंट्रल हैव मेन कॉस्ट हाई कॉस्ट एज कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। सॉलिड डोसेज फॉर्म जो होता है वो बहुत ही सस्ते पड़ते हैं, मीन्स हमको कन्वीनियंट होते हैं, हम उनको इजीली परचेज कर पाते हैं और हम उनको इजीली ले पाते हैं। बट हमारा जो पेरेंट्रल प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, काफ़ी कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड डोसेज फॉर्म। देन नेक्स्ट जस्ट वेट, route of administration मीन्स हमको कहाँ प्रोवाइड कराना है पेरेंट्रल इंजेक्शंस को। दैट मीन्स जहाँ हमारा इंजेक्शन हमको देना है वो कहलाता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सो फर्स्ट there are different layer of skin, as we know there are 7 layers of the skin, so we can easily give our parenteral product into the skin. First we give a intravenous, ठीक है, मीन्स इंट्रावीनस मतलब होता है हमारी वेन्स के थ्रू देते हैं। हम क्या करते हैं, जो हमारा इंजेक्शंस रहता है हम उनको अपनी वेन्स के थ्रू देते हैं। ज़्यादातर इंजेक्शंस हम वेन्स के थ्रू इसलिए देते हैं ताकि वो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में जाके इजीली डिसॉल्व हो जाए और हमें जो इफेक्ट मिलना है वो हमको ज़्यादा अच्छे से मिले। सेकेंड इंट्रामस्कुलर मीन्स होता है मसल्स के थ्रू, है ना। जैसे अभी कोविड का चल रहा है तो जो कोविड की वैक्सीनेशन जो आई है वो हम किसके थ्रू देते हैं, मसल्स के थ्रू देते हैं, ठीक है। तो जिसमें क्या होता है कि हमको क्या होता है, मसल्स के थ्रू देने से हमें अपनी स्किन को इफेक्ट होता है, ठीक है। डायरेक्टली मसल्स के थ्रू जाएगा और डायरेक्ट ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा। सबक्यूटेनियसली प्रोवाइड करते हैं हम, इंट्राडर्मल यूज करते हैं हम, एंड अदर रूट्स के थ्रू भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज इंट्रावीनस, इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल एंड अदर रूट्स। नाउ नेक्स्ट वी what is the intramuscular injection? इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो होते हैं जनरली एडल्ट्स में दिए जाते हैं, जो कि अपर आउटर पोर्शन ऑफ द ग्लूटेनियस मैक्सिमा में दिए जाते हैं। फॉर चिल्ड्रन एंड सम अदर एडल्ट्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो होते हैं वो हमको मसल्स और शोल्डर के दिए जाते हैं। जैसे यहाँ जो पोर्शन होता है यहाँ पे हम मसल्स के थ्रू दिए जाते हैं। टिपिकली जो इसमें नीडल्स का हम यूज करते हैं वो 20 to 25 गज की, हर एक नीडल्स का अलग अलग साइज होता है जो कि हम प्रोवाइड करते हैं। कई बार नीडल्स का जो साइज रहता है वो काफ़ी मोटा होता है, कई बार जो नीडल्स का साइज होता है वो बहुत हाफ, तो 1 to ½ इंच का भी होता है ना, दैट इज 1 to ½ इंच नीडल भी हम यूज़ करते हैं। इंट्रामस्कुलर जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है जनरली हम उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं वो 90 डिग्री एंगल के थ्रू यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो वॉल्यूम जो यूज़ करते हैं, ठीक है, जो वॉल्यूम हम यूज़ करते हैं वो कितना वॉल्यूम लेते हैं, लेस देन 2 ml, ठीक है। जो इंट्रामस्कुलर में जो वॉल्यूम ऑफ इंजेक्शन
या वॉल्यूम जो हम लिक्विड जो फिल करते हैं वो कितना होना चाहिए, लेस देन 2 ml, लेस देन 2 ml। इंट्रामस्कुलर जो हमारा होता है वो हमारा बॉडी का स्किन का फर्स्ट पार्ट होता है, ताकि जो हमारा ड्रग है वो हम इजीली उसको एडमिनिस्टर कर सके। अभी जो कोविड चल रहा है जिसमें हम बात करते हैं, तो हमारा जो ड्रग है वो जनरली सभी वैक्सीन है वो मसल्स के थ्रू ही दिया जा रहा है, ना कि वेन के थ्रू। ये जो हमारा इंट्रामस्कुलर की हम बात करते हैं, ठीक है। इंट्रावीनस की हम बात करते हैं। इंट्रावीनस इंजेक्शंस जो रहता है, ठीक है, वो होता है वेन्स के अंदर। हमारी जो वेन्स होती हैं उसके अंदर हम इंट्रावीनस इंजेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। मींस जो हमारी ग्रीन वेन्स दिखती है ना, इनको हम इंजेक्शन के थ्रू देते हैं। दैट इट मींस डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इट मींस दैट इट इज डायरेक्टली गोज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। मींस हम जब वेन्स में देंगे तो वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, जो वेन्स में जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या होगा, आराम से स्लो करके वो हमारे ऑल ओवर बॉडी में पहुंच जाएगी ड्रग, ठीक है। ऑफन इट इज यूज्ड इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। दैट इज जो ड्रग है हम जो इंट्रावीनस जो यूज करते हैं, जनरली हम जब यूज करते हैं वो कौन सा होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज किया जाता है और क्रिटिकल एरिया में यूज किया जाता है, ठीक है। कॉमनली यूज जो होते हैं फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट्स है ना, और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में जो है वो उसमें हम यूज करते हैं, ठीक है। फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। ये जनरली जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है। जो क्रिटिकली पेशेंट रहते हैं, मींस जो अनकॉन्शियस स्टेट में होते हैं जो पेशेंट, ठीक है, वो पेशेंट का क्या होता है, तब वो अनकॉन्शियस स्टेट में है और अगर वो क्रिटिकल है तो हमें दिक्कत होती है कि हम उसको न्यूट्रिएंट कैसे रिप्लेस करें। तो हम उनको क्या करते हैं, वाया फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के थ्रू ही हम उनको ये देते हैं, ठीक है। इनमें जो डिग्री यूज करते हैं वो होता है 15 to 20 डिग्री का यूज करते हैं, 15 to 20 डिग्री। और इसमें जो वॉल्यूम हम यूज करते हैं वो होता है नॉट मोर देन 1 लीटर, है ना। जो आपने देखी होगी बॉटल्स, पैरेंट्रल की जो प्रोडक्ट्स एसबीपी आती है, स्मॉल वॉल्यूम पैरेंट्रल्स, लार्ज वॉल्यूम पैरेंट्रल्स, ठीक है, उसमें जो वॉल्यूम का पैरेंट्रल का साइज होता है वो होता है 1 लीटर। कितना होता है, 1 लीटर। पहले में जो हमने पढ़ा था इंट्रामस्कुलर है, क्योंकि वो इंट्रामस्कुलर हम फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट के लिए नहीं देते हैं, तो हम उनका जो यूज करते हैं वो कितना रहता है, 2 ml, लेस देन 2 ml। बट जो हमारे इंट्रावीनस इंजेक्शंस रहते हैं वो जनरली कितना रहता है, नॉट मोर देन 1 लीटर। जैसे ग्लूकोज की जो बॉटल्स लगते हैं ना, वो चीज होती है हमारा ये, और उसको हम 90 डिग्री में देते हैं इंट्रामस्कुलर का, और इंट्रावीनस का जो है वो 15 to 20 डिग्री में प्रोवाइड कराते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं सबक्यूटेनियस की। सबक्यूटेनियस ये इसकी स्किन की एक लेयर होती है, सबक्यूटेनियस, ठीक है। ये स्किन की हमारे जो लेयर होती है वो 3rd नंबर की लेयर होती है, जिसमें हम पैरेंट्रल्स को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, है ना, ठीक है। बिलो द स्किन टू द सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। जो हमारा फर्स्ट लेयर स्किन का होता है, इसके नीचे जो हमारा फैट प्रोवाइड होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। उसमें हम डायरेक्ट इंजेक्शन को प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि लॉन्गर ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोवाइड कराने के लिए हम, है ना, सबक्यूटेनियस का इफेक्ट, सबक्यूटेनियस फैट में हम मेडिकेशन प्रोवाइड कराते हैं। बिकॉज ये जो होता है इसमें मेन रीजन ये है कि हम इसमें जो इफेक्ट मिलना है वो हमको बहुत ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू IM और IV। इन दोनों के थ्रू जो इफेक्ट मिलना है वो सबक्यूटेनियस फैट में ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, बिकॉज ये 3rd लेयर हो जाती है। फर्स्ट हमारी स्किन है, डर्मिस है, देन इसके बाद हमारी जो लेयर होगी वो 3rd लेयर होती है, और ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट एक्शन प्रोवाइड कराती है। इसका जो डिग्री होता है देने का, दैट इट इज 45 डिग्री एंगल पे दिया जाता है, और मेनली जो सिरेंज साइज होता है वो होता है 3/8 और 5/8, ठीक है, इंच लेंथ के थ्रू ही दिया जाता है। और 20 to 25 गॉज की नीडल से ही इसको हम इंजेक्शन प्रोवाइड करते हैं।
ये जो होता है ज़्यादा 1 ml से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट शुड बी नॉट इंजेक्टेड इनटू द साइट ऑफ एक्शन, ठीक है। बिकॉज हमारी जो सेंसरी नर्व होती हैं हमारी बॉडी में, है ना, उनको डैमेज नहीं होना चाहिए, उनको पेन नहीं होना चाहिए, ना कि वो डिस्कम्फर्ट होनी चाहिए। अगर हम इन पे ज़्यादा वॉल्यूम लगाएंगे, वॉल्यूम पे इंजेक्ट करेंगे और ज़्यादा सिरिंज जो रहेगी या जो नीडल है हमारा, उसका साइज जो है अगर वो ज़्यादा होता है, उसके कारण हमारी बॉडी में क्या होगा, डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, हमारे हैंड में डिस्कम्फर्ट हो जाएगा, हमारी कई बार नर्व डैमेज हो जाती है, सेंसरी नर्व पेन करती हैं, डिस्कम्फर्ट होती हैं। और मेन क्या होता है इसमें, सबसे थर्ड लेयर का जो होता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये फैट प्रोवाइड कराता है ना, ताकि इसमें हमें जो एक्शन मिलने वाला है वो ताकि बहुत ज़्यादा ऑनसेट और फास्ट एक्शन प्रोवाइड हो। नाउ देन इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन की बात करते हैं, ठीक है ना। हमने अभी जितनी बात करी, जो इंजेक्शंस की हमने बात करी है, वो हमारे सारे इंजेक्शंस डिफरेंट लेयर ऑफ द स्किन की बात कर चुके। अब हम बात करते हैं आर्टरीज की, ठीक है। ये जो इंजेक्शन है वो डायरेक्ट कहाँ दिया जाता है, आर्टरीज में दिया जाता है, ठीक है, जो कि हार्ट मसल्स कहलाती है और वेंट्रिकल एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी ओनली। बिकॉज ये जब हार्ट अटैक्स आते हैं, मेनली मेजर अटैक सिंड्रोम, तो क्या होता है जनरली हम उनको आर्टरी में ही इंजेक्ट करते हैं, ताकि जो रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन प्रोवाइड हो, है ना, जिनमें जो हार्ट मसल है वो हमारी क्या हो जाए, ठीक से एक्सपैंड हो जाए, है ना। और ये इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन ही हम इंट्रा आर्टियल के थ्रू देते हैं। कौन से इंजेक्शन देते हैं, इंट्रा कार्डियक इंजेक्शन मीन्स हार्ट रिलेटेड इंजेक्शन, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो इंजेक्शन हम प्रोवाइड कराते हैं वो होते हैं इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन। देन बात करते हैं हम इंट्रा एथिकल इंजेक्शन की, इंट्रा एथिकल इंजेक्शंस की, इंट्रा एथिकल इंजेक्शन की। ये जनरली जो होते हैं वो सेवेकोनॉइड स्पेस और सराउंड द स्पाइनल कोड, मीन्स जो हमारा स्पाइनल कोड रहता है ना, उसके थ्रू दिया जाता है, जहाँ पे ये बैक जो होता है स्पाइनल जो रहता है उसमें दिया जाता है, ठीक है। बिकॉज हम एनेस्थीसिया प्रोवाइड किया जाता है इसके थ्रू, ताकि जो हमारे वेन्स हैं, जो हमारा कॉन्शियसनेस है, उसको हम लॉस कर जाएं। जनरली ये प्रेगनेंसी के टाइम पे दिया जाता है, डिलीवरी के टाइम पे दिया जाता है, ताकि जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, वो अपना कॉन्शियसनेस खो दे और उनका जो लेबर पेन है वो रिड्यूस हो जाए। जो सीजर जो होता है वो उसमें हम इंट्रा एथिकल इंजेक्शन